Assalamu alaikum students. This is your second chapter in sociology in 8th standard social studies, that is culture. Okay, the name of chapter is culture. This chapter is quite important, students, because this culture is that something which we deal in everyday life. Okay, culture is not separate or individual substance from our body or from our entity. It is present in our internal mentality, in our internal behavior. Okay, culture. Let us know what is the meaning of culture. Students, human beings comes under animal categories. Okay, in this world there are two type of categories. One is plants categories, second is animal categories. Okay, in the living organisms, if we categorize the living organisms, if we divide the living organisms into two groups, we will get two different groups. One is plants group, second is animals group. Okay, and human beings comes under animal groups. We are animals, but in animals human beings are extremely superior because of their distinct specialities. Okay, because of their distinct specifications. Animal categories, human beings comes under extreme superior level. Okay, and this superiority in all the animals is just because of the culture. Okay, human being is not only a social being. That means the people who lives in the societies, who lives in the residential areas, who lives in the corporate areas. Okay, but also human beings are cultural beings, because every society has its own culture, every tribe, every family. Okay, every family and every nation has its own culture. And all the families, if you talk about the families, if you talk about the societies, if you talk about the residential areas, if you talk about the cities, the towns, the villages, the countries, the nations, all these are because of the human beings. Okay, every human being can be considered as a cultural representative. That means it represents its own culture by the means of their way of talking, by means of its way of behavior, its way of conduct. It represents its culture. Okay, so culture is something which is associated very keen way with each and every entity of human being. Okay, सो बच्चों, ये आपका सोशल स्टडीज का 8th चैप्टर, सोशोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है कल्चर। कल्चर अगर हम कैसे कहें तो उर्दू में अगर मैं कहूँ तो उसे सकाफत और तहजीब को कहते हैं। तहजीब, तहजीब और सकाफत कल्चर का माना कल्चर के आते हैं। कल्चर कल्चर कहते किसे हैं बच्चों? जितने भी मखलूक इस दुनिया में जिंदा है, जितने भी मखलूक को जिंदगी है, उनमें दो कैटेगरीज हैं। एक है प्लांट कैटेगरीज, झाड़, दरख्त, शजर। ओके, दूसरी कैटेगरीज है जानवरों की। ओके, और आपको बताता चलो, शायद आपको पता भी होगा कि इंसान जानवरों की कैटेगरी में आता है। इंसान जानवरों की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये कल्चर ही है जो इंसान को सारे जानवरों से आला और ऊंचे मुकाम को पर ले जाता है। ठीक है, इंसानों से तमाम जानवरों से इंसान अलग क्यों है? क्योंकि इंसान के पास कल्चर है। तमाम जानवरों से इंसान जुदा क्यों है? क्योंकि इंसान के पास तहजीब और सकाफत है। ठीक है, तमाम जानवरों में इंसान डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इंसान का उस खुद का रहने सहने का एक अलग बेहतरीन तरीका है। वो जानवरों की तरह जिंदगी नहीं गुजारता, वो जानवरों की तरह नहीं रहता। इंसान, इसका खुद का एक मजहब है, इसका खुद का एक कबीला है, इसका खुद का एक खानदान है। जानवरों का ना कोई खानदान होता है, ना कोई मजहब होता है, ना कोई कबीला होता है, ना कोई रहन सहन का तरीका होता है। तो रहन सहन का तरीका जो इंसान अपनाते हैं, यही तरीका इंसान को जानवरों से अलग करता है। यही तरीकों को हम कल्चर कहते हैं। ओके, कल्चर कल्चर indicates progress in lifestyle, music, literature, art, science and technology of any given human society.
ये कल्चर ही है जो सोसाइटी का इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि सोसाइटी में कितनी तरक्की है, सोसाइटी में कितनी तरक्की नहीं है, सोसाइटी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, सोसाइटी में कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सोसाइटी में कितना साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है और सोसाइटी में किस कदर पुराने दौर के तरीके यूज होते हैं। ये सारी चीजें कल्चर में शामिल हैं। कल्चर मीन्स द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, लिटरेचर, बिलीफ, वैल्यू, बिहेवियर, हायरार्की, रिलेशनशिप फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, कल्चर यानी अब आपने जो कुछ भी सीखा आपके पेरेंट्स से सीखा, ठीक है, आपके पेरेंट्स से, आपके फादर मदर से आपने सीखा, ठीक है, हमारे मजहब के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में, हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे जिंदगी के हर काम के तरीके के बारे में आपने सीखा। किससे? आपके पेरेंट्स से। आपके पेरेंट्स से किन अपने पेरेंट्स ने किससे सीखा? उनके पेरेंट्स से, ठीक है। उनके पेरेंट्स, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ने किनसे सीखा? उनके पेरेंट्स से। तो ये कल्चर एक ऐसा नॉलेज है जो ट्रांसफर होते जाता है, और एक्सपीरियंस और बिलीफ। कल्चर एक्सपीरियंस को भी कहते हैं, तजुर्बे को भी कहते हैं, यानी मतलब कि अगर आप किसी इंसान के साथ बहुत लंबे अरसे तक है तो आपको तजुर्बा हो जाता है कि वो इंसान किस तरह का है, ठीक है। और कल्चर इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ लाइफ एंड नॉलेज शेयर्ड अमंग ए सोशल ग्रुप, ओके। Culture means a life pattern of group of people. It contains the life symbols along with beliefs and values. Usually, they are transferred from one generation to another. देखिए बच्चों, दुनिया में बहुत सारे मजहब हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, दुनिया में बहुत सारे लाखों लैंग्वेजेस, हजारों लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, और दुनिया में हजारों लाखों तरह के खानदान हैं, और हर खानदान का उसका अपना खुद का रहन सहन का तरीका होता है, और हर इंसान अपने मजहब को पसंद करता है और उसके तरीके को पसंद करता है, ठीक है। तो कल्चर क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है। दैट मीन्स हम मुसलमान हैं, सारे मुसलमानों का दुनिया में एक ग्रुप है, और इस दुनिया में हिंदूज भी है, सारे हिंदूज का एक ग्रुप है। इस दुनिया में ईसाई भी है, क्रिश्चियंस, सारे क्रिश्चियंस का एक ग्रुप है। इस दुनिया में ज्यूस भी है, यहूदी, सारे यहूदियों का एक ग्रुप है। इस दुनिया में ब्राह्मण्स भी है, सारे ब्राह्मण्स का एक ग्रुप है। इसी तरह कल्चर ग्रुप ऑफ पीपल का भी नाम है, ठीक है। नाउ एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कल्चर। द वर्ड कल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोलियर, मींस कल्टीवेट और टेंड इन लैटिन। कल्टीवेट यानी किसी चीज को उगाना, किसी चीज की पीक करना, किसी झाड़ को लगाना। अब कल्चर झाड़ को इसलिए कहते हैं क्योंकि उस एक झाड़ से और एक झाड़ बना सकते हैं, उसके दरख्त को, उसके टहनियों को लेकर, उसके बीज को लेकर। During medieval period, culture was in form of agriculture to indicate the improved yield of sown seeds. Now definitions of culture. अलग अलग राइटर्स ने कल्चर के अलग अलग डेफिनेशंस लिखे हैं। कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल which includes knowledge, belief, art, rules and regulations, traditions and other capabilities earned by the human being as member of society. कल्चर किसे कहते हैं? अगर जिस सोसाइटी में भी इंसान रह रहा है, उस सोसाइटी के बारे में बिलीफ, और उस सोसाइटी के बारे में आर्ट, और उस सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, और उस सोसाइटी के ट्रेडिशंस को फॉलो करना, उसके अंदर एक काबिलियत पैदा कर लेता है वो सारी चीजों की, इसे कहते हैं कल्चर। और अकॉर्डिंग टू मैलिनोव्स्की, यहाँ पे है मैलिनोव्स्की, MALINOWSKI, ये एक बहुत बड़े कल्चर के राइटर हैं। According to Malinowski, the tool created by human beings to design his aims is life is called as culture. मतलब ये कि आपने जिंदगी में एक बहुत बड़ा मकसद बना लिया है कि मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर डॉक्टर बनना है, या फिर लॉयर और टीचर बनना है। अब उस एम को हासिल करने के लिए कि आप क्या क्या चीजें डिजाइन करते हैं, किस तरह से मेहनत डिजाइन करते हैं, इसे आपका कल्चर कहते हैं, ठीक है। ये दो है डेफिनेशंस। नेक्स्ट आता है बच्चों टाइप्स ऑफ कल्चर। कल्चर के कितने टाइप्स हैं? कल्चर इज डिवाइडेड इनटू मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। कल्चर के मेनली दो डिफरेंट टाइप्स है, मटेरियल